guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I'm Aarti Kaushik again here with another video. And in this video I will discuss about male reproductive system. So in this video we are going to include all these points. First we will discuss about reproductive organs, in which we are going to understand what is scrotum, human testis, vasa, efferentia, epididymis, vasa, differentia, ejaculatory ducts, urethra, in which we will understand different types of urethra like prostatic urethra, membranous urethra, penile urethra, urinary urethra, and then in the last we will understand about penis. Here when we will discuss about human testes, we will discuss the three types of layers that are present in testes and three types of cells like germ cells, somatic cells, which are also known as Sertoli cells, or sustentacular cells or nerve cells. Then we will discuss about leading cells and or interstitial cells. We will understand what are these cells and what are their functions in male reproductive system. After that we are going to understand some accessory sex glands like seminal vesicles and what are their function, prostate gland, Cowper's gland, and perineal or rectal gland. Then we will understand the semen, what it consists and what not. Then hormonal control of male reproductive system, male sex act like erection, copulation, orgasm, and subsidence of erection. Then we will understand the disorder of male reproductive system like prostatomegaly, that is prostatic hypertrophy, and then impotence and sterility. So stay tuned with me, and if you like it then please subscribe to my channel, and if you have any query then write in the comment section given below. Thank you so much for clicking on my video. For understanding these points, let's cover some important points of human reproductive system. So what is reproductive system? Reproductive system is collection of some internal and external organs, means the organs which we can see externally in a human, either it's male or female, जो externally present होते हैं. Internally like Cowper's gland, fallopian tube, seminal vesicle in case of male, vasa differentia, vasa efferentia in case of male. But if we talk about female, like uterus, fallopian tubes, ovary, etc. in case of female. So these are internal organ जिसकी हम इमेज ले सकते हैं MRI के थ्रू या अल्ट्रासाउंडोग्राफी के थ्रू. तो जो ये एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होके आफ्टर प्यूबर्टी फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर मैं बात करूँ स्टेप्स की, तो कौन कौन से स्टेप्स आते हैं जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ह्यूमन के केस में. सो सबसे पहले आता है गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमारा आएगा oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis मतलब ओवा की फॉर्मेशन, और स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म की फॉर्मेशन. अब ये फॉर्मेशन होगी कहाँ से? ये गोनाड से होगी. जैसे गोनाड की हम बात करें तो मेल के केस में ये गोनाड होंगे टेस्टिस, और फीमेल के केस में ये गोनाड्स होंगे ओवेरी. टेस्टिस हमारा क्या देगा? स्पर्म देगा. ओवेरी हमारा क्या देगी? ओवा देगी. तो जब ये गोनाड से माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों ही यहाँ पे क्या होते हैं? डिवीजन होते हैं. उसके बाद हमारा क्या फॉर्म हो जाता है? ओवा और स्पर्म फॉर्म हो जाता है. मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, एंड जो हमारा माइटोसिस होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है. मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं, बट हमारा जो माइटोसिस होता है उसमें 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं. उसमें हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं, जितने पेरेंट में थे उतने ही डॉटर सेल में रहेंगे. बट मियोसिस में क्या होता है? रिड्यूस हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम. फिर जब हमारे गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, गैमेट्स क्या है यहाँ पे? ओवा एंड स्पर्म आर गैमेट्स. तो गैमेट की फॉर्मेशन होने के बाद इंसेमिनेशन होता है, मतलब कि जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म. वो किस में जाता है? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, मीन्स वेजाइना में. उस बात को हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन. जैसे आजकल इंजेक्शंस के थ्रू अगर हम IVF की बात करें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, तो इंजेक्शन के थ्रू प्लेस किया जाता है स्पर्म इन द वेजाइना और समटाइम्स इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ ए फीमेल. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो आपने देखा होगा
एनिमल्स में एक बड़ा सा इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है जिसमें स्पर्म होता है और वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में उसको प्लेस कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। फिर क्या होगा, जब हमारा स्पर्म और ओवा एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्यूज़ होने का मतलब होता है स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और फीमेल के ओवा के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बना देते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जब होता है तो इन दोनों के मिलने से, स्पर्म और ओवा के मिलने से एक सेल बनती है, एक सिंगल सेल बनती है। उस सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। उस जाइगोट के अंदर दो न्यूक्लियस मिले होते हैं, एक स्पर्म का और एक ओवा का, और बाद में वो एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है। मतलब उसमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी। दिस जाइगोट इज डिप्लॉयड। देन इम्प्लांटेशन की प्रोसेस आती है। मतलब जाइगोट तो फॉर्म हो गया, ये कहाँ पे इम्प्लांट होगा, ये हमारा पहले डिवीजन स्टार्ट कर देगा, ब्लास्टोसिस्ट जिसको बोलेंगे। बहुत सारी सेल्स फॉर्म हो जाएंगी हमारी डिवीजन की प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन के बाद जब थोड़ी सी सेल्स फॉर्म हो जाएंगी, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा हमारा, तब हमारा क्या होगा, इसकी अटैचमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी यूट्रस की वॉल से। बट हम अगर यहाँ पे बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन एम्पुलर रीजन में होता है, फेलोपियन ट्यूब के। अब वो फेलोपियन ट्यूब से मूव करता है क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में हमारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। उनकी मूवमेंट की वजह से, वेव लाइक मूवमेंट की वजह से जो हमारा जाइगोट होता है वो यूट्रस के अंदर आ जाता है, जिसको हम वोम बोलते हैं। जहाँ पे वो यूट्रस जो होता है वो हार्मोन्स की वजह से, लाइक प्रोजेस्ट्रोन की वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी का पहला साइन क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोन की सिंथेसिस एंड प्रोजेस्ट्रोन का सिक्रेशन। तो जब प्रोजेस्ट्रोन सिक्रेट होता है तो यूट्रस की लाइनिंग प्रिपेयर होने लग जाती है जाइगोट की अटैचमेंट के लिए। तो उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, इम्प्लांटेशन होगी। कब हुई इम्प्लांटेशन, जब हमारा जाइगोट जाके कहाँ अटैच हो गया है, यूट्रस की वॉल से। नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सिंपल सी बात है, जाइगोट जो होता है हमारा, वो जब यूट्रस में जाके प्लेस हो गया, मतलब वहाँ पे वो अटैच हो गया यूट्रस की लाइनिंग से, उसके बाद जाइगोट हमारा डिवाइड होने लग जाता है। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज बनती हैं, फिर 8 से 16 सेल स्टेज बनती है, फिर 32 सेल स्टेज बनती है, मोरूला, गैस्ट्रूला, ये सब चलते हैं हमारे, ब्लास्टूला, मोरूला, गैस्ट्रूला। तो ये जो स्टेज होती हैं, इसके बाद हमारा जब डिवीज़न हो जाता है, सेल्स का डिवीज़न होता रहता है, और तब तक जब तक कि ऑर्गन्स और जो हमारे लिम्स हैं वो डेवलप नहीं होते, उससे पहले क्या होता है, हमारा एम्ब्रियो होता है। देखो, एम्ब्रियो में और फिटस में और जाइगोट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्पर्म एंड ओवा के फ्यूज़न की, दोनों फ्यूज़ हुए, स्पर्म हमारा ऐसा वेव लाइक स्ट्रक्चर होगा, ओवा हमारा राउंड होगा, इसमें भी न्यूक्लियस था, इसमें भी न्यूक्लियस था, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ होकर एक सिंगल सेल बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। फिर जाइगोट डिवाइड होकर बहुत सारी सेल वाला स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। बट जब ये एम्ब्रियो लिम्स फॉर्म कर देती है, जैसे इसमें हमारे 4 लिम्स, हिंड लिम्स मतलब हाथ और पैर जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ऑर्गन्स जैसे हार्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, लंग्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। जब ये स्टार्ट हो जाती है तो वो क्या आ जाता है, फिटस बन जाता है। और जब वो फिटस पैदा होता है तो वो हमारा फुल्ली ग्रोन जब हो जाता है तो वो हमारा ऑफस्प्रिंग बन जाता है। फिर होता है पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन मीन्स डिलीवरी। डिलीवरी जब होती है बच्चे की तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। उनको अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे नॉर्मली उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, कभी कभी हम इसको एसेसरी और एक्सटर्नल सेक्स करेक्टर या एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स भी बोल देते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हमारे गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स में मैंने बात की, मेल में टेस्टिस है, फीमेल में हमारी ओवेरी है, तो ये हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं या फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो हमारे गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। गैमेट्स की मैंने बात बोली कि जो हमारे टेस्टिस होंगे वो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म इज ए गैमेट, एंड ओवेरी हमारा ओवा प्रोड्यूस करेगी जो एक गैमेट है।
फिर अगर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं, तो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, उसमें जो अलग अलग ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग पाइप्स जो प्रेजेंट होती हैं, डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, लाइनिंग प्रेजेंट होती है, वो सब हमारी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आती हैं, जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, वास एफरेंशिया, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, पेनिस। ये सब हम अंडरस्टैंड करेंगे। आज मैं बात कर रही हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फेलोपियन ट्यूब क्या है, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूट्रस क्या है, वेजाइना क्या है, एक्सटर्नल जेनिटालिया क्या है, यूला क्या है, और बार्थोलिन्स ग्लैंड क्या होती है, और मेमरी ग्लैंड क्या होती है। तो जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, एक्चुअल में हम मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब स्टडी करेंगे तो आपको इनके बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा कि वासा फ्रेंशिया क्या है, वासा डिफरेंशिया क्या है, फेलोपियन ट्यूब क्या है। सो प्लीज़ कीप पेशेंस। अब मैं बात करूं एसेसरी और एक्सटर्नल सेक्स करेक्टर की, तो ये होते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्स करेक्टर भी बोलते हैं हम, जो प्यूबर्टी के बाद आते हैं। जैसे लो पिच वॉइस हो जाना, बियर्ड हो जाना। लो पिच वॉइस मतलब थिक वॉइस हो जाती है मेल्स की, पर उनकी पिच क्या होती है, कम होती है। फीमेल में पिच क्या होती है, हाई होती है, पर उनकी आवाज़ जो होती है वो पतली होती है। ऐसे ही बियर्ड आ जाती है, ब्रॉड शोल्डर मेल्स में होते हैं, म्यूस्टिच आ जाना और नैरो हिप हो जाना मेल्स में, ब्रीथिंग बाय डायफ्रागम इन केस ऑफ मेल। अगर फीमेल की बात करें तो हमारे स्मूथ फेस हो जाता है, नैरो शोल्डर हो जाते हैं, ब्रॉड हिप हो जाती है, और हमारी जो ब्रेथ होती है वो स्टर्नल ब्रेथ होती है इन केस ऑफ फीमेल्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्क्रोटम की, तो ये हमारा जो यहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पिगमेंटेड स्किन होती है, और ये हमारे लोअर एब्डोमेन से, एब्डोमेन होता है हमारा नेवल के नीचे वाला पार्ट, नेवल के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम एब्डोमेन बोल रहे हैं, उससे नीचे जो लटका होगा पाउच वाला स्ट्रक्चर, पाउच टाइप स्ट्रक्चर, उसको हम स्क्रोटम बोलेंगे, और वो पिगमेंटेड होगा। ठीक है। जो टेस्टिस होते हैं वो हमारे कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, एब्डोमेन से ओरिजिनेट होते हैं। बट जब कोई भी बच्चा जो बॉय है या फिर हम बोले मेल है, वो अपनी मदर की यूट्रस में प्रेजेंट है, मतलब उसकी मदर प्रेग्नेंट है, तो जब उसको 7th मंथ लगता है, मतलब 7th मंथ के दौरान जो हमारे टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस कहाँ पे डेवलप होते हैं, पहले एब्डोमेन के अंदर, तो वो कहाँ पे आ जाते हैं, वो लाई कर जाते हैं इस स्क्रोटम के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, बट ये स्क्रोटम जो है वो 2 डिग्री लेस टेम्परेचर प्रोवाइड करता है टेस्टिस को, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे डेड हो जाते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक मेल में, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, या फिर वो एलिफेंट हो, या फिर वो हॉर्स हो, या फिर वो ह्यूमन बींग्स हो, उनमें स्क्रोटम प्रेजेंट होता है, ताकि वहाँ पे वो स्पर्म को स्टोर कर सके लो टेम्परेचर पे। आई समझ। और जब ये 7th मंथ लगता है, उस टाइम पे जो हमारे टेस्टिस हैं वो परमानेंटली जब स्क्रोटम में आते हैं, तो वो किसके थ्रू आते हैं, वो स्क्रोटल सेक के थ्रू आते हैं, जिसको हम स्क्रोटल सेक के थ्रू आते हैं। उस स्क्रोटल सेक को हम इंग्यूनल कैनाल भी बोलते हैं। होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर मैं सेकंड अब यहाँ पे बात करूँ, तो स्क्रोटम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्क्रोटम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटम, और यहाँ पे ऐसे पेनिस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे स्पर्मेटिक कोड प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? स्पर्मेटिक कोड, जो टू टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, एक ये टेस्टिस है एंड दिस इज सेकंड टेस्टिस। टू टेस्टिस प्रेजेंट है, दोनों टेस्टिस को कौन कनेक्ट करता है? कौन कनेक्ट करता है? स्पर्मेटिक कोड कनेक्ट करती है। ये जो स्पर्मेटिक कोड होती है किससे मिलके बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड सप्लाई करना। ठीक है, ये ब्लड सप्लाई करता है, जिसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मोस्टली आर्टरीज एंड वीन्स प्रेजेंट होती हैं, और लिम्फ वेसल्स। लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है बेसिकली वो हमारी बॉडी को प्योरीफाई करता है। ठीक है। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट, तो जो हमारा टेस्टिस है उसकी पोजीशन वेरी करती है कुछ मैमल्स में। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे लायन की, बुल की,
या फिर हॉर्स की बात कर रही हूँ, तो जो टेस्टिस हैं वह परमानेंटली किस में होंगे, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होंगे और वो पूरे साल स्क्रोटम के अंदर से ही फंक्शन करेंगे। ठीक है। बट कुछ सीजनल ब्रीडिंग मैमल्स होते हैं, जैसे सीजनल ब्रीडिंग मैमल्स में आते हैं हमारे बैट, और या फिर हम बात करें ओटर, लामा, कुछ इंसेक्टिवोर्स, रोडेंट, रोडेंट हमारे होते हैं जैसे चूहा हमारा होता है, उनमें टेस्टिस इनलार्ज हो जाता है। इनलार्ज मतलब बड़ा हो जाता है किस टाइम पे, जब उनका सीजन आएगा, जिस सीजन में मान लो वो समर सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं, तो समर सीजन में उनके जो टेस्टिस होंगे वो इनलार्ज हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे और फंक्शनल हो जाएंगे, और उनके टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाएंगे ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर। बट जैसे ही वो सीजन ख़त्म होगा, वापस से उनके टेस्टिस कहाँ पे चले जाएंगे, एब्डोमिनल कैविटी में, और उनके टेस्टिस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे साइज़ में, स्मॉल साइज हो जाएगा और उनके टेस्टिस इनएक्टिवेट हो जाएंगे। कुछ केसेस में एलिफेंट जो होता है हमारा, वेल होती है, सील होता है, इनमें टेस्टिस जो होते हैं वो परमानेंटली कहाँ पे होते हैं, टेस्टिस परमानेंटली एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्यों, एज द बॉडी टेम्परेचर इज़ लो इनफ, क्योंकि वेल में भी, एलिफेंट में भी और सील में भी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो लो होता है, जिसकी वजह से एब्डोमेन के अंदर भी स्पर्म मैच्योर कर जाते हैं। पर ह्यूमन के केस में हमारा जो टेम्परेचर वो फिक्स होता है, इसलिए हमारे टेस्टिस परमानेंटली किस में लाई करते हैं, स्क्रोटम के अंदर लाई करते हैं। एक और बात, कुछ में स्क्रोटम हमारा अब्सेंट होता है, जैसे स्क्रोटम इज इन फ्रंट ऑफ पेनिस। कंगारू के केस में, कंगारू की अगर हम बात करें तो कंगारू के केस में जो स्क्रोटम होता है वो कहाँ पे लाई करता है, पेनिस के फ्रंट में लाई करता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन टेस्टिस की। ह्यूमन टेस्टिस की बात करने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। द डायग्राम ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। अब दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम मैंने बोला पाउच होता है, उसके बीच में यहाँ पे स्क्रोटल सैक प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे हमारे दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। जो टेस्टिस होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्यों होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मैंने बोला क्योंकि वो हमारे यहाँ पे किसको देते हैं, गैमेट को, स्पर्म्स की फॉर्मेशन करते हैं। अप्रोक्स ये हमारा 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एंड 2.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, मतलब वाइड होता है, 3 सेंटीमीटर ये थिक होता है, और ये हमारे स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये स्क्रोटल सैक के अंदर, जैसे ये स्क्रोटल सैक है, उसके अंदर यहाँ पे मैंने बात की स्पर्मेटिक कोड, स्पर्मेटिक कोड से सेपरेट किए जाते हैं, स्पर्मेटिक कोड के थ्रू। और हर एक, अब मैंने बोला एक ये टेस्टिस होगा लेफ्ट एंड राइट, मान लो ये राइट टेस्टिस है हमारा और ये हमारा लेफ्ट टेस्टिस है, तो दोनों जो टेस्टिस होते हैं उनका वेट ईच, मतलब अगर इस खाली मैं वन राइट टेस्टिस की बात करूँ तो 10 से 15 ग्राम का होता है। और हर एक टेस्टिस की 3 कवरिंग होती है, 3 कवरिंग होती है। कौन कौन सी कवरिंग होती है, ट्यूनिका वेजिनालिस, एक ये कवरिंग होती है ट्यूनिका वेजिनालिस, सेकंड होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया, एंड थर्ड होती है ट्यूनिका वेसोक्युलोसा। ट्यूनिका वेसोक्युलोसा होती है थर्ड वन, वेसोक्युलोसा। इन ग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया कॉल्ड सेप्टा, जब ये अंदर की तरफ ग्रो करने लग जाती है तो ये क्या फॉर्म करती है, सेप्टा फॉर्म करती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये बहुत सारे सेप्टा हैं, जब ये बहुत सारे हैं तो हम इनको सेप्टम बोल देते हैं, मतलब प्लूरल फॉर्म में। अगर सिंगल की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे सेप्टा, अगर हम प्लूरल की बात करें तो हम बोलेंगे सेप्टम। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया जो होती है वो अंदर की तरफ ग्रो करती है, ग्रो करने के बाद वो बहुत सारे स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिनको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। तो जो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ वो क्या है, हमारे सेप्टम है। अब जो ये सेप्टम होते हैं ये टेस्टिस में जाके 200 to 300 लोब्यूल्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। देखो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं एल्ब्यूजेनिया यहाँ पे ग्रो कर गई किसमें, सेप्टम में। अब जो सेप्टम है वो किस में डिवाइड हो गया, यहाँ पे लोब्यूल्स में, और ये लोब्यूल्स का नंबर कितना होगा, 200 to 300 लोब्यूल्स होंगे। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंसिस्ट 1 to 3 कॉन्वोल्यूटिल सेमनीफेरस ट्यूबल्स। अब ये जो होती है इनके अंदर ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूबल। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है, सेप्टा फॉर्म कर रहा है, बहुत सारे सेप्टा फॉर्म कर रहा है इसलिए उसको सेप्टम बोल रहे हैं। सेप्टम अंदर लोब्यूल्स में डिवाइड हो रहा है, लोब्यूल्स हमारे 200 to 300 लोब्यूल्स होंगे, जैसे ये हमारे लोब्यूल्स हैं। अब इन लोब्यूल्स में एक
ट्यूब फॉर्म होती है जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूबुल्स बोलते हैं, और ब्लड वेसल्स भी बनती है इसमें, और नर्व्स भी इम्बेडेड होती हैं, और लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। मतलब अगर मैं खाली वन लोब्यूल की बात करूँ, ये लोब्यूल है, एक स्ट्रक्चर है, एक चैम्बर सा बन गया है। इस चैम्बर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? सेमनीफेरस ट्यूबल प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब उसके बाद एक टोटल ऑफ 750 सेमनीफेरस ट्यूबल्स ओक्यूर होती हैं। कितनी? अबाउट 750 सेमनीफेरस ट्यूबल प्रेजेंट होती हैं हर एक टेस्टिस के अंदर। जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती हैं वो किसके थ्रू लाइन की गई होती है? मतलब हर, जैसे ये यहाँ पे आपको एक ट्यूब दिख रही है, ये एक ट्यूब दिख रही है। ट्यूब क्या होती है? जो होलो हो और जिसके अंदर से कुछ फ्लो कर सके। तो ये जो ट्यूब होती है जो ऐसे कोइल्ड है, इस ट्यूब की भी तो कवरिंग होगी ना, इसके ऊपर भी तो एक लाइनिंग बनी होगी। तो वो लाइनिंग किसकी बनी होती है? वो लाइनिंग बनी होती है जर्मिनल एपिथेलियम की। एपिथेलियम टिश्यू होता है, हमारे डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, और स्केलेटल टिश्यू होता है। तो जो जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू होता है उसकी कैपेसिटी होती है जर्मिनेट करने की, मतलब वो डिवीजन की स्टेट में रहता है, रिन्यू होता रहता है, वो डिवाइड करता रहता है। तो जो सेमनीफेरस ट्यूबल है उसकी कवरिंग किससे होती है? जर्मिनल एपिथेलियम की होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी सेमनीफेरस ट्यूबल्स हैं उसमें क्या प्रोसेस होती है? उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? एक गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है। गैमेटोजेनेसिस क्या? जिसमें हमारे गैमेट फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे कौन से गैमेट फॉर्म होंगे? स्पर्म फॉर्म होंगे। तो स्पर्म किसके अंदर फॉर्म होंगे? सेमनीफेरस ट्यूबल के अंदर। ठीक है। अब जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ओक्योर इन वेव्स। कौन सी प्रोसेस? स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो वेव्स में होती है, ट्यूबल्स की लेंथ के अलोंग। क्यों? क्योंकि ये वेव लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे प्रेजेंट है। तो ऐसे ही ऐसे वो क्या होगी? सेमनीफेरस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। और ये कितना टाइम ले लेगी? 9 वीक का टाइम ले लेगी एक स्पर्म को प्रोड्यूस करने में। अब जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स हैं इनके अंदर तीन टाइप की सेल्स लाई करती हैं। 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं सेमनीफेरस के अंदर। सोचो कितना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा कि भाई हमने पढ़ा कि 3 तो टेस्टिस की कवरिंग, पहले हमने पढ़ा कि स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस लाई कर रहे हैं। अब टेस्टिस के अंदर हमने पढ़ा कि उनकी 3 कवरिंग है, ट्यूनिका वेजिनालिस, एल्ब्यूजिनिया एंड वेसिकुलोसा। अब एल्ब्यूजिनिया का हमने पढ़ा कि वो अंदर ग्रो कर रही है किसकी फॉर्म में? वो सेप्टम फॉर्म कर रही है। सेप्टम के अंदर ये जो चैम्बर बन रहे हैं ये लोब्यूल्स हैं। लोब्यूल्स के अंदर हमने पढ़ा सेमनीफेरस ट्यूबल है। फिर हमने पढ़ा कि ये जो ट्यूब है इनकी कवरिंग होती है जर्मिनल एपिथेलियम की। फिर हमने पढ़ा कि जो सेमनीफेरस ट्यूबल है इसके अंदर भी 3 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सोचो कितना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा। एक छोटी सी चीज में इतनी सारी चीजें हैं, तो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये। तो कौन कौन सी सेल्स होती हैं? एक होती है हमारी जर्म सेल्स, जिसको हम जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं ये किससे हमारी बनती है? एंडोडर्म से बनती है। देखो हमारी 3 जर्म लेयर होती हैं, 3 जर्म लेयर। जब भी कोई फिटस ग्रो करता है, गैस्ट्रुलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारी न्यूरुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। न्यूरुलेशन मतलब हमारी नोटोकोड बननी स्टार्ट हो जाती है। उसी टाइम पे 3 जर्म लेयर बनती है हमारी। एक्टोडर्म जो हमारी आउटर मोस्ट होती है, मिजोडर्म जो हमारी मिडल होती है, मिडल वन, एंड एक होती है एंडोडर्म जो हमारी इंटरनल होती है, इंटरनल। तो ये 3 जर्म लेयर में से जो जर्म सेल्स हैं वो किससे मिलके बनी है? एंडोडर्म से, जो इंटरनल लेयर होगी। तो जो जर्म सेल हैं इनको हम स्पर्मेटोजेनिक सेल्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, कैसे करेंगी? माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, मतलब म्यूसिस नहीं, माइटोसिस डिवीजन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म होगा, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। देखो सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर एक सेल है जर्म सेल जिसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। इसको मैं बोल सकती हूँ माइटोसिस डिवीजन होने की वजह से क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जब ग्रो करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट फॉर्म करेगा। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट होगा उसमें क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन। जो हमारा क्या फॉर्म करेगा? फर्स्ट सेकेंडरी
फर्स्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करेगा, स्पर्मेटोसिस्ट। जो स्पर्मेटोसिस्ट फिर ग्रो करेगा और वो क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड्स बनाएगा। फिर स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू डिफरेंशिएट हो जाते हैं। डिफरेंशिएट होने का मतलब ये होता है कि दो सेल मान लो एक चीज़ से फॉर्म हो रही है और दोनों सेल ग्रो करके अलग अलग फंक्शन कर रही हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट हो रही है, मतलब उनके स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है और उनका फंक्शन अलग है। तो यहाँ पर स्पर्मेटिड्स जो होती हैं वो डिफरेंशिएट होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू और वो यहाँ पे स्पर्म बना देती हैं। तो स्पर्म मैंने बोला कि डिफरेंशिएट हो रही हैं, तो एक एक्स स्पर्म और एक वाई क्रोमोसोम, एक में एक स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा, एक में वाई क्रोमोसोम होगा, इसलिए ये दोनों डिफरेंशिएट होंगी। अब ये जो स्पर्म है ये फ्रीली लाई करेगा सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर। दूसरे टाइप की जो सेल्स होती हैं जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स में लाई करती हैं वो होती हैं सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स या जिसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ये क्या करती हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती हैं। कौन सा हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। देखो पोली मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड मतलब जहाँ पे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ के एक लंबी सी चेन फॉर्म करते हैं उसको पेप्टाइड बोलते हैं। पोली मतलब बहुत सारी ऐसी पेप्टाइड चेन जुड़ी होंगी। हार्मोन क्या होता है, किसी एक ग्लैंड से सिक्रेट होगा जो हमारी क्या होगी, डक्टलेस ग्लैंड होगी, डक्टलेस ग्लैंड होगी और ये हार्मोन हमेशा ब्लड में सिक्रेट होता है और जहाँ पे ये सिक्रेट होता है उससे कहीं और जाके इसका फंक्शन, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये होता है। तो जो सोमेटिक सेल्स होंगी या सर्टोली सेल्स होंगी वो न्यूट्रिशन सिक्रेट करेंगी या फिर एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करेंगी जिस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिन बोलते हैं। और ये एक स्टीरॉयड सिक्रेट करेंगी। स्टीरॉयड्स हमें मेल करैक्टर देते हैं, जैसे उनकी बियर्ड है, उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी मस्कुलैरिटी है, वो सब। तो जो स्टीरॉयड्स होते हैं इसमें होता है हमारा ओस्ट्राडायोल सिक्रेट जो हमारे स्पर्मेटोजेनेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। स्पर्मेटोजेनेटिक एक्टिविटी का मतलब है कि स्पर्म की फॉर्मेशन की एक्टिविटी और स्पर्म की मूवमेंट की एक्टिविटी को भी ये स्टीरॉयड अफेक्ट करता है। कौन सा स्टीरॉयड, ओस्ट्राडायोल, ओस्ट्राडायोल। तो सोमेटिक सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी और क्या करेंगी, एक हार्मोन सिक्रेट करेंगी जिसको इनहिबिन बोलते हैं और एक स्टीरॉयड सिक्रेट करेंगी ओस्ट्राडायोल जो क्या करेगा, स्पर्म की फॉर्मेशन को एंड स्पर्म की मूवमेंट को अफेक्ट करेगा। तीसरे टाइप की सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर वो होती हैं हमारी लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में लाई करती हैं सेमनीफेरस ट्यूबल के अंदर। ये क्या फॉर्म करती हैं, ये हमारी एंडोक्राइन सेल्स होती हैं और सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर जो स्पेस लाई होता है उसमें ये प्रेजेंट होती हैं। ये हमारा सेक्स हार्मोन सिक्रेट करेंगी। कौन सा हार्मोन, सेक्स हार्मोन। किसमें, मेल में, मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं। और एंड्रोजन किससे मिलके बना होता है, कोलेस्ट्रॉल से मिलके बना होता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या फॉर्म करता है, एंड्रोजन फॉर्म करता है और एंड्रोजन हमारा सेक्स हार्मोन है और ये किसके थ्रू सिक्रेट किया जाता है, लेडिंग सेल्स के थ्रू। और लेडिंग सेल्स कहाँ पे लाई करती हैं, सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर। सेमनीफेरस ट्यूबल कहाँ पे लाई करती है, लोब्यूल्स के अंदर। ये लोब्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, जब टूनिका एल्ब्यूजिनिया हमारे सेप्टम फॉर्म करती हैं तो सेप्टम के बाद यहाँ पे क्या बनते हैं, चैम्बर्स बनते हैं जिसमें लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूबल होती है। सेमनीफेरस ट्यूबल्स में लेडिंग सेल्स होती हैं। लेडिंग सेल्स हमारी सेक्स हार्मोन सिक्रेट करती हैं जो एंड्रोजन होता है और वो कोलेस्ट्रॉल से मिलके बना होता है। फिर आते हैं हमारे रीड टेस्टिस जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारे रीड टेस्टिस। दिस इज़ ए प्लेक्सीफॉर्म अरेंजमेंट, मतलब हम ये कह सकते हैं कि नेटवर्क है। ये नेटवर्क है, डिफरेंट आपको दिख रहे हैं नेटवर्क, मतलब बहुत सारी यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। हाईली वस्कुलर कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है जो हमारा क्या कर रहा है, ये आगे हमारे स्पर्म्स को माइग्रेट करने में हेल्प करता है और कोई फंक्शन नहीं है इसका, ये माइग्रेशन में हेल्प करेगा। अब फॉर्म होता है वासा एफ्रेंशिया। देखो जो हमारी रीड टेस्टिस होते हैं
रीड टेस्टिस वो कनेक्ट होते हैं एपिडिडाइमस से। ठीक है, ये रीड टेस्टिस हमारे किससे कनेक्टेड है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारे एपिडिडाइमस से कनेक्टेड है। तो जो एपिडिडाइमस होता है वो क्या होता है, 12 to 20 फाइन ट्यूबल्स होती हैं, जिसको हम ट्यूबल्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम वासा एफरेंशिया बोलते हैं, और हम इसको डक्टस एफरेंशिया भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, सीलिएटेड होती हैं, मतलब डक्टस जो एपिडिडाइमिस है इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होती हैं ताकि ये स्पर्म को आगे भेज सकें, स्पर्म इसके अंदर मूवमेंट कर सके। फिर उसके बाद हम आता है हमारा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या होता है, जो रीड टेस्टिस है वहाँ से स्पर्म मूव करते हैं कोइल्ड फॉर्म में इफरेंट डक्ट में, जिसको हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं, और वो एक सिंगल ट्यूब्यूल्स में डक्टस एपिडिडाइमिस में एम्पेटी हो जाते हैं, और उसके बाद वो मूवमेंट करते रहते हैं और एपिडिडाइमिस में पहुंच जाते हैं। एपिडिडाइमिस के भी 3 पार्ट होते हैं, एक टेल एपिडिडाइमिस, एक हेड और एक मिडल पार्ट होता है। तो जो हमारा अपर पार्ट होता है, जो हेड होता है वो ग्लोबुलर होता है, और मिडिल पार्ट जो होता है वो ग्लोबुलस होता है, और बेसल टेल जो होता है वो कोडा होता है, मतलब वो माइनर होता है। तो बेसिकली एपिडिडाइमिस का अगर फंक्शन की बात करें तो इस स्पर्म को स्टोर करते हैं कुछ घंटों के लिए, ठीक है, ताकि इजाकुलेशन के थ्रू वो बाहर भेज के। तो यहाँ पे हमारे जो स्पर्म है वो यहाँ पे स्टोर होते हैं एपिडिडाइमिस के अंदर। फिर आती है यहाँ पे वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया क्या होती है, जो वासा डिफरेंशिया होती है वो कोडा एपिडर्मिस से, मतलब टेल जो होती है एपिडर्मिस की इसकी, उसका कॉन्टिन्यूएशन करती है, मतलब उसी से आगे फॉर्म होती है वो। ठीक है, और ये हमारी 45 सेंटीमीटर की होती है, लॉन्ग होती है, थोड़ी सी कोल्ड होती है, फिर उसके बाद ये सीधी हो जाती है। वासा डिफरेंशिया क्या करती है, स्पर्म को एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा में लेके जाती है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, जो वासा डिफरेंशिया है वो क्या करेगी, अब हमें ये पता चला कि एपिडिडाइमिस के अंदर तो स्टोर होंगे स्पर्म, तो यहाँ से वासा डिफरेंशिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे लेके जाएगी, स्पर्म्स को यूरेथ्रा के अंदर लेके जाएगी। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि वासा एफरेंशिया में और वासा डिफरेंशिया में क्या डिफरेंस होता है, तो वासा एफरेंशिया हमारी रीड टेस्टिस से अराइज होती है, वासा डिफरेंशिया हमारी कोडा एपिडर्मिस, मतलब मैंने बात की थी कि वासा एफरेंशिया हमारी एम्पेटी होगी, मतलब ये हमारे आगे कंटिन्यू करेगी एपिडिडाइमिस में, जिसमें हमारे 3 रीजन होंगे, मिडल, हेड और टेल। जो टेल वाला रीजन होता है उसको हम कोडा एपिडर्मिस बोलते हैं। तो जो टेल वाला रीजन होता है वहाँ से हमारे वैसा डिफरेंशिया राइज होती है, पर वैसा एफरेंशिया रीड टेस्टिस से राइज होती है। रीड टेस्टिस से स्पर्म्स को एपिडिडाइमिस में लेके जाती है, एपिडिडाइमिस आगे इसको किस में पास करता है, डिफरेंशिया में। फिर डिफरेंशिया जो होती है वो डिफरेंशिया हमारे स्पर्म्स को कहाँ पे लेके जाती है, यूरेथ्रा के अंदर। सिंपल, ये हमारी 15 to 20 होती है नंबर में, ये 2 ही होती है नंबर में। ये फाइन है, कॉन्वोल्यूटेड है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कॉल्ड स्ट्रक्चर है, ये थिक होती हैं और स्ट्रेट होती हैं एब्डोमेन के अंदर। ये इनकी लाइनिंग सीलिएटेड होती है ताकि स्पर्म की मूवमेंट अच्छी हो सके। इनके अंदर स्टीरोसीलिया होती हैं, बहुत ही छोटी सीलिया, मतलब सीलिया का भी छोटा रूप, ताकि और ज़्यादा स्पीड से मूवमेंट हो सके स्पर्म्स की। ये स्पर्मेटोजोआ को मतलब कैरी करती है। स्पर्मेटोजोआ होते हैं जो हमारे फाइनल स्पर्म्स नहीं बने होते, मतलब उसमें यहाँ पे एक प्रोसेस होती है कैपेसिटेशन, जो फीमेल के जो जेनाइटल ट्रैक्ट है उसी में होती है, जिसके बाद हमारा जो स्पर्म है वो फ्यूज़ करने के कैपेबल हो जाता है, मतलब वो सही से मैच्योर हो जाता है कि वो ओवा को जाके फ्यूज़ करे। पर वो कहाँ पे होगी, जब वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आ जाएगा तब होगी। तो उससे पहले हमारा स्पर्म स्पर्मेटोजोआ की फॉर्म में होता है, रीड टेस्टिस में, जिसके बाद वो कैपिट एपिडिडाइमस में जाएगा, मतलब टेल वाले रीजन में जाएगा। और जो वैसा डिफरेंशिया वो स्पर्मेटोजोआ को कैरी करेगी कोडा एपिडाइमस से इजाकुलेटरी डक्ट्स में, जहाँ पे उसको बाहर जाना होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाना होगा। अब हम बात करें इजाकुलेटरी डक्ट की, तो इजाकुलेटरी डक्ट हमारी शॉर्ट डक्ट है, जैसे यहाँ पे हमें दिख रही है, ये हमारी इजाकुलेटरी शॉर्ट है, मतलब बस 2 सेंटीमीटर लंबी होंगी, सीधी होंगी, मस्कुलर ट्यूब्स हैं। ये किससे मिलके बनी होती हैं, वासा डिफरेंशिया से मिलके बनी होती हैं, वासा डिफरेंस से मिलके बनी होती हैं, और सेमनीफेरस ट्यूबल से मिलके बनी होती हैं, सेमिनल वेसिकल सॉरी। तो सेमिनल वेसिकल क्या होता है, सेमिनल वेसिकल एक फ्लूइड सिक्रेट करती है जो हमारा स्पर्म के साथ मिल जाता है। स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड होता है वो मिक्स होके हमारा क्या फॉर्म करता है, हमारा सीमेन फॉर्म करता है, जो इजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा में जाता है।
और यूरेथ्रा के अंदर हमारी क्या प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये रही हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब हम यूरेथ्रा की अगर बात कर रहे हैं, ये हमारा यूरेथ्रा है, ये वाला पोर्शन यूरेथ्रा है। तो जो यूरेथ्रा है वो क्या करता है, ये यूराइनरी डक्ट है जो कहाँ से आ रही है, हमारी ब्लैडर से आ रही है। ब्लैडर जहाँ पे हमारा ब्लड स्टोर होता है, सॉरी यूरिन स्टोर होता है, जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है। देखो, जो हमारी यूरेथ्रा है वो कहाँ से पास होके आ रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होके आ रही है, ठीक है। और वो कहाँ पे आ रही है, पेनिस में। ये स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है पेनिस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहाँ से पास होके आ रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। अब वासा जो हमारी डिफरेंशिया थी वो हमारे स्पर्म्स को कहाँ पे लाके छोड़ती है, इजाकुलेटरी डक्ट में। ये इजाकुलेटरी डक्ट है और इजाकुलेटरी डक्ट उसको यूरेथ्रा से कनेक्ट कर देती है। यूरेथ्रा की से को ओपन करने से पहले वो एक प्रोस्टेट ग्लैंड से कनेक्ट करती है। आया समझ। अब क्या होता है, जो इजाकुलेट डक्ट है वो कैरी करेगी यूरिन भी और स्पर्मेटोजोआ भी, दोनों ही चीज़ होंगी। एक ही ओपनिंग होती है मेल में, जिसको हम ग्लांस पेनिस, ये स्किन होती है जो पेनिस के बिल्कुल बोलें तो बिल्कुल फ्रंट पोर्शन पे होती है, वो ग्लांस पेनिस होती है, बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। तो एक ही ओपनिंग होती है, इससे उनका यूरिन भी आएगा और इससे ही उनके स्पर्म्स भी बाहर आएंगे। तो इसने बोला कि जो यहाँ पे इजाकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट है, ये जो इजाकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट है ये यूरिन को भी कैरी करेगी और स्पर्मेटोजोआ को भी कैरी करेगी। और इसके अंदर यूरिन भी है, स्पर्मेटोजोआ भी है, प्लस जो सेमिनल वेसिकल है ये भी एक फ्लूइड जनरेट करती है, वो फ्लूइड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये सिक्रेशन किससे, दो ग्लैंड से भी सिक्रेशन लेती है ये। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है हमारी, उसका सिक्रेशन भी होता है इसमें। और एक और ग्लैंड होती है हमारी कोपर्स ग्लैंड, उसका सिक्रेशन भी होता है। तो आपको समझ में आया, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर सेमिनल वेसिकल का भी फ्लूइड होता है, यूरिन भी होता है, स्पर्मेटोजोआ भी होता है, कोपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन भी होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रेशन होता है, ठीक है। और वो उसको कहाँ पे पास करती है, यूरेथ्रा के अंदर पास करती है। यूरेथ्रा अबाउट 220 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और पेनिस से पास होता है और बाहर वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, मतलब बाहर उसको एक्सक्रीट कर देता है। अब मैंने बोला था कि जो हमारे यूरेथ्रा होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। यूरेथ्रा मैंने कई टाइप्स के बोला। एक तो यूराइनरी यूरेथ्रा जो बस हमारा यूरिन कैरी करेगा, मेल के केस में बस यूरिन कैरी करेगा। एक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो जो प्रोस्टेट ग्लैंड को सराउंड करेगा। एक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो मिडल पार्ट में होगा, कवरिंग नहीं होगी, और वो यूरेथ्रा का छोटा सा पार्ट फॉर्म करेगा, ये खाली यूरेथ्रा, ठीक है। एक पेनाइल यूरेथ्रा जो लॉन्ग डिस्टल पार्ट है, जो पेनिस के अंदर से जा रहा है और वो स्पंजी फॉर्म में है, इसको हम बोलते हैं पेनाइल पार्ट। तो ये अलग अलग पार्ट के हिसाब से बोला जा रहा है। जो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड से जा रहा है वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो यहाँ से जा रहा है उसको यूरेथ्रा, जो यहाँ से जा रहा है उसको पेनाइल यूरेथ्रा बोल देते हैं, और जो आगे है उसको यूराइनरी यूरेथ्रा बोल देते हैं, क्योंकि वो यूरिन कैरी कर रहा है। फिर बात आ जाती है हमारी पेनिस की। मेल के केस में पेनिस क्या है, एक इरेक्टाइल और कोपुलेटरी ऑर्गन जो कोपुलेशन में हेल्प करता है, जो सेक्स करने में हेल्प करता है बेसिकली। इट कंसिस्ट ए लॉन्ग साफ्ट, आपको दिख रही है एक साफ्ट है इसमें, ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है। लार्ज है जो एक्सपेंडेड टिप है। ग्लांस पेनिस है जो बहुत सेंसिटिव होती है, ये ग्लास पेनिस। और इसमें फोर स्किन होती है जिसको प्रीपेस बोलते हैं, जो ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। ये किसके थ्रू कवर होता है, फोर स्किन के थ्रू कवर होता है। स्किन के अंदर, पेनिस के अंदर 3 कॉलम्स होते हैं इलेक्ट्राइल टिश्यू के, जिसमें 2 सिलेंडर होते हैं कॉर्पोरा कवर्नोसा के। कॉर्पोरा कवर्नोसा दिख रहे हैं आपको, 2 पेयर्स हैं, 1 एंड 2, 2 पेयर्स हैं, और 2 पेयर्स है कॉर्पस स्पंजिया स्पॉन्जियोसम पेनिस के, ये और ये। तो हमारे कॉर्पस स्पंजियोसम है, और ये वाला पोर्शन जो है हमारा कॉर्पोरा कवर्नोसा है, ठीक है। 2 कॉलम है। जो कॉर्पोरा कवर्नोसा है पेनिस की, एंड द यूरेथ्रा आर कवर्ड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये और जो हमारा बीच का यूरेथ्रा होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से कवर होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मतलब उसमें ब्लड सप्लाई होती है, नर्व एंडिंग होती है, ठीक है। अगर नर्व्स नहीं होंगी तो वो इरेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और यूरिन और सेमिन होता है वो पेनिस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट होता है, किसमें, मेल के केस में। अब अगर हम बात करें स्पर्म स्टोरेज की, तो जो स्पर्म स्टोरेज होता है वो मोस्ट हमली हमारा वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंशिया के अंदर होता है। और यहाँ पे हमारी रहेगी है हमारी कोपर्स ग्लैंड, जैसे ये हमारी कोपर्स ग्लैंड है। जो कोपर्स ग्लैंड होती है हमारी, इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, बल्बो
यूरेथ्रल ग्लैंड। एक पार्ट तो इसका यूरेथ्रा से अटैच है, एक पार्ट तो इसका यूरेथ्रा से अटैच होता है, जिसमें ये क्या सिक्रेट करती है, एल्कलाइन म्यूकस। एल्कलाइन म्यूकस सिक्रेट करती है। म्यूकस चिपचिपा सा पार्ट होता है, एल्कलाइन जो एसिड नहीं होता, बेसिक जिसकी प्रॉपर्टी हो, ऐसा एल्कलाइन म्यूकस ये सिक्रेट करती है, जो हमारे यूरेथ्रा के अंदर पास हो जाता है और स्पर्म के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ये म्यूकस लुब्रिकेट करता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक को, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक को। और जो हमारा फीमेल के और मेल का जो यूरेथ्रा, उसमें जो एसिडिटी है, मतलब जो एसिड नेचर है यूरेथ्रा का, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है एल्कलाइन होने की वजह से। क्योंकि एल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा जब सीमेन के प्रोड्यूस होने से पहले। फिर हम बात करें रेक्टल ग्लैंड्स की, इसमें कुछ रेक्टल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो जो रेक्टल ग्लैंड होती हैं, रेक्टल ग्लैंड, जो रेक्टल ग्लैंड होती हैं, ये मेल में और फीमेल में दोनों में ही होती हैं, ब्रीडिंग सीजन में आती हैं। ये ग्लैंड्स हमारा ओडोरीफेरस लिक्विड सिक्रेट करती हैं। ओडोरीफेरस का मतलब है जिसमें कुछ ओडर हो, मतलब जिसमें कुछ स्मेल आती हो, फ्रेग्रेंस आती हो, ऐसा कोई लिक्विड सिक्रेट करती हैं, जिसको हम फेरोमोन्स भी बोलते हैं, एक्टो हार्मोन्स भी बोलते हैं। एक्टो क्योंकि ये बाहर एक्ट कर रहा है ऐसा हार्मोन है, और फेरोमोन्स क्योंकि ये दूसरे सेक्स को, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए सिक्रेट होता है। ठीक है, ये मोस्टली हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स मैमल्स में होता है। इन मैन पेरिनियल और रेक्टल ग्लैंड अब्सेंट होती हैं ह्यूमन के केस में। अब मैं यहाँ पे बात करूँ सीमेन की, तो सीमेन क्या क्या कंसिस्ट करेगा। सीमेन टेस्टिस से स्पर्मेटोजोआ जो आएंगे उनको कंसिस्ट करेगा। जो मेल में सेक्स के टाइम पे जो सिक्रेट होगा उसको हम सीमेन बोलते हैं, तो वो स्पर्मेटोजोआ को कंसिस्ट करेगा जिसमें स्पर्म होंगे, प्लस यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड थी उसके सिक्रेशन को कवर करेगा जो कि एल्कलाइन होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन को कवर करेगा, प्लस सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन को कवर करेगा। और इसमें मिल्की विस्कस एल्कलाइन होता है फ्लूइड, जो जिसका पीएच 7.2 टू 7.7 होता है, वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये कोलेक्टिवली मिलके हमारा क्या करता है, सीमेन फॉर्म करता है। तो सीमेन में स्पर्म को नरिश करने के लिए कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या बोले शुगर प्रेजेंट होते हैं, लाइक फ्रक्टोज भी प्रेजेंट होता है। और न्यूट्रलाइज करने के लिए यूरेथ्रा को कुछ अल्कलाइन सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। बाद आती थी हमारी कुछ एसेसरी ग्लैंड, जिसमें हमारी सेमिनल वेसिकल भी आती है। सेमिनल वेसिकल एक लॉन्ग पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो हमें दिख रहा है, वस्कुलर वाल होती है। स्पर्मेटोजोआ एक्टिवेटिंग सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं। जैसे मैंने बोला कि फ्रक्टोज क्या करता है, नरिश करता है स्पर्म को, तो वो किसके थ्रू, सेमिनल वेसिकल के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। सिट्रेट भी सिक्रेट करती है ये, इनोसिटोल भी सिक्रेट करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी सिक्रेट करती है। प्रोटीन्स, दूसरे टाइप के प्रोटीन्स भी सिक्रेट करती है। बेसिक सी बात है कि सेमिनल वेसिकल्स नरिश करती है हमारे स्पर्म्स को। ठीक है, तो ये अल्कलाइन न्यूट्रिटिव फ्लूइड सिक्रेट करती है जो मेन पार्ट फॉर्म करता है। 60% पार्ट जो होता है सेमिनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेमेन के अंदर। तो सीमेन जो होता है उसमें स्पर्म के अलावा 60% पार्ट सेमिनल वेसिकल का प्रेजेंट होता है। अब रेप का टेस्ट कैसे किया जाता है, जैसे मैंने बोला सेमिनल वेसिकल फ्रक्टोज सिक्रेट करती है, तो जो फ्रक्टोज होता है जो सेमिनल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, ये प्रोड्यूस होता है, कहीं पे भी प्रोड्यूस हो सकता है, बट ये एक फोरेंसिक टेस्ट देता है रेप के लिए। क्योंकि जो सीमेन होता है जब मेन इजाकुलेट करता है सेक्स के टाइम पे, तो उसमें हमारा सेमिनल फ्लूइड भी है, मतलब उसमें फ्रक्टोज भी प्रेजेंट है, तो वो फ्रक्टोज जब वेजाइना में मिलता है तो हम कह सकते हैं कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, मतलब कि रेप हुआ है। अब दूसरी हमारी एसेसरी ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड करती है यूरेथ्रा के पार्ट को, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये यूरेथ्रा के पार्ट को, ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के पार्ट को ये क्या कर रही है, हमारी सराउंड कर रही है। ये एसिडिक फ्लूइड सिक्रेट करती है, और उस एसिडिक फ्लूइड का पीएच होता है 6.5 के अराउंड। 25% पार्ट बनाती है ये सीमेन का, सीमेन जिसमें हमारे स्पर्मेटोजोआ, सेमिनल फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड का भी पार्ट होता है। तो 25% किसका पोर्शन होता है, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। ये भी एक्टिवेट करती है स्पर्मेटोजोआ को और मोबिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब मूवमेंट प्रोवाइड करती है। इसके सिक्रेशन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, एंड फोस्फेट प्रेजेंट होता है।
किसके सिक्रेशन में? प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन में। ये कोएगुलेटेड सेमेन भी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से मूवमेंट मिलती है किसको? हमारे स्पर्म को। अब आते हैं हम हार्मोनल कंट्रोल के ऊपर कि हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है ह्यूमन के केस में, बेसिकली मेल के केस में। जो ग्रोथ है, मेंटेनेंस है, फंक्शन है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे हमारे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे मैंने बात की थी, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस होगा, वासा डिफरेंशिया होगा, वासा डिफरेंशिया, एसेसरी ग्लैंड होंगी, एसेसरी ग्लैंड्स, एंड पेनिस होगा। ये किसके अंडर होते हैं? ये टेस्टिस हार्मोन के अंदर होते हैं। और वो टेस्टिस हार्मोन किसके थ्रू बनता है? लेडिंग सेल्स जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ी, लेडिक्स जो सेल्स होती हैं किसकी होती हैं? सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर लाई करती हैं, सेमनीफेरस ट्यूबल के इंटरस्टिशियल स्पेस में। मतलब सेमनीफेरस ट्यूबल के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसमें लीडिंग सेल्स लाई करती हैं। वो हार्मोन सिक्रेट करती हैं टेस्टोस्टेरोन। वो हार्मोन इन सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो ये लीडिंग सेल्स होती हैं टेस्टिस की, जो सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर लाई हैं, ये हमारी किसके थ्रू कंट्रोल की जाती हैं? देखो, इनको भी कोई कंट्रोल करेगा। ये तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट कर रही हैं, जो कंट्रोल किसको कर रहा है? एपिडाइमिस को, वासा डिफरेंशिया को, एसेसरी ग्लैंड्स को और पेनिस को। बट लीडिंग सेल्स को कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH एंड LH। और ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब एंटीरियर पिट्यूटरी को भी कोई स्टिमुलेट करता होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी को गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब है कि उनको कुछ सिक्रेट हार्मोन सिक्रेट करने के लिए एक्टिवेट करना, वो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस इनको एक्टिवेट भी करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और इनहिबिट भी करता है। तो ये इनहिबिट भी करती है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू, एंड LH प्रोडक्शन के थ्रू ये इसको इनहिबिट भी करती हैं। तो अगर LH प्रोडक्शन हो रहा है लीडिंग सेल्स में, तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा। टेस्टोस्टेरोन इनको क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा। FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है सर्टोली सेल्स पे लागू करता है। ये क्या करती हैं सर्टोली सेल्स? ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म की फॉर्मेशन को ये क्या करती हैं? एक्टिवेट करती हैं। और एक हार्मोन सिक्रेट करती हैं इनहिबिन, जो इनहिबिन दोबारा से हमारे हाइपोथैलेमस में जाता है और उसको इनहिबिट कर देता है, जिसके बाद गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट नहीं होता। अब वो सिक्रेट नहीं होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट नहीं होगी, LH सिक्रेट नहीं होगा, लीडिंग सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगी, टेस्टोस्टेरोन भी नहीं बनेगा, और ये सब एक्टिवेट नहीं होगी। सो दिस इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मैन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं कुछ डिसऑर्डर्स की। सबसे पहले मैंने बात की थी प्रोस्टाटोमेगाली, जिसको हम प्रोस्टेटिक हाइपोट्रोफी बोलते हैं। ये इन्लार्जमेंट होती है, इसमें इन्लार्जमेंट हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, मतलब वो बड़ी हो जाती है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। ये ओल्ड एज में होता है, बेसिकली ओल्ड एज में होता है। और इनलार्ज होने की वजह से यूरेथ्रा जो होता है, जहाँ से हमारा यूरिन भी पास होगा और स्पर्म भी पास होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड लार्ज होगी। तो ये हमारा ज़्यादा होता है जब हम रात में यूरिनेशन करता है कोई मेल जो ओल्ड एज में है, तो बहुत ही मुश्किल से वो यूरिन पास करता है, बहुत पेनफुल प्रोसेस होती है। और यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकती है, जिसको सर्जिकली मतलब सर्जरी करके ही रिमूव किया जाता है, और कई बार ड्रग्स के थ्रू, मतलब मेडिकेशन के थ्रू, मतलब कि उसको मेडिसिन दे के भी ट्रीट किया जा सकता है। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है इन एबिलिटी ऑफ मेल टू अचीव और मेंटेन इरेक्शन। जब वो इरेक्ट नहीं हो पाता पेनिस, तो उसको इम्पोर्टेंस बोलते हैं। अब स्टीरिलिटी का मतलब है कि जो स्पम्स की लाइबिलिटी है, मोबिलिटी है, सॉरी, ना कुछ स्पम्स होते हैं जो जल्दी डेड हो जाते हैं किसी किसी मेल्स में, और उनकी मोबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से जब वो उनको फीमेल की वेजाइना में पास करेंगे तो वो फेलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाते, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो मोबिलिटी कम होने की वजह से, स्पर्म में मूवमेंट कम होने की वजह से क्या होता है? स्टेरिलिटी होती है। कई बार स्पर्म काउंट कम होता है सीमेन के अंदर, प्रोस्टेट का फ्लूइड भी ज़्यादा होगा, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड भी ज़्यादा होगा, पर जो स्पर्मेटोजोआ है वो कम होंगे, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको बोलते हैं स्टेरिलिटी।